it's the last 3 days of the competition. India right now are in the 5th position. And this morning, from news from the world of track and field is that India has won 2 silver medals. The first, of course, a historic silver coming from Avinash Salve in 3000 meters steeplechase. That was the first medal in steeplechase that India has been able to win in Commonwealth Games. He clocked 8:11.20 to come second best after Abraham Kiwibot of Kenya. He ended up breaking the national record, and this is also his personal best. And it wasn't just Avinash, but race walker Priyanka Goswami also won a silver medal in 10,000 meter race walk. She clocked her personal best of 49 minutes 38 seconds to become the first Indian woman to win in race walking at the Commonwealth Games. Good news also coming from the relay team, 4x100 meter relay team. They have also reached the final. Their finals expected tomorrow. Now, talking about the sport of boxing, Neetu Gangas has reached the gold medal match. Big expectations from this young boxer, given that she had beaten Mary Kom in the trials. Indian pugilist has beaten Canada's Priyanka Dhillon in the semi-final to advance to a final. Her win has assured that that India gets at least a silver medal from the Birmingham Games. Neetu led the bout after 2 rounds, with all 5 judges giving her 10 points in both rounds. She stamps her authority in the 3rd and final round to give India a shot at another gold medal at the Games. Well, we are at the lawn bowls venue right now, where India is expected to win another medal today. Of course, the women had won a gold medal here, the women's force team. That was a historic first. Lawn ball was only introduced in India during the time of the Delhi Commonwealth Games, and now it's the turn of the men's team, the men's force team here that is playing the final match against Northern Ireland. Of course, they are trailing right now and possibly a silver medal, but it is a great journey for them. There are 2 policemen, 1 physical education teacher and 1 pilot in that team, none of whom professionally play the sport. They're all amateurs, but they have managed to get India this far. The Indian women's team is also playing its semi-final match against England. A win here is guaranteed to take them to the final and a medal as well. That's really. Now, there was some great result from the world of wrestling yesterday. Bajrang Punia was able to defend his gold medal, the one he had won in Gold Coast. He repeated that performance here in Birmingham, claiming another gold. And he says that right now, after the Olympic Games, after the injury that he had, he is fully fit. Joining me is one of the most loved athletes in Indian sport, Bajrang Punia, who has defended his gold medal at this edition of the Commonwealth Games. Bajrang, gold medal defend करना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? देखिए, देश के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, और जब तिरंगा ऊपर जाता है तो हर खिलाड़ी का, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल होता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे सभी देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो बिल्कुल गोल्ड जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ, मैंने दूसरा गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब जुलाई में वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर रह चुके हैं। वर्ल्ड नंबर 1 को सामने देख के बाकी सारे इंटिमिडेट वैसे ही हो जाते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आप नंबर 1 है या नंबर 10 पे हैं, वो महत्व नहीं रखता। जब आप
फील्ड में आते हैं, जब देश के लिए कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पे मेडल जीतना उतना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 और 10 नंबर, अगर आप मेडल नहीं जीतोगे तो वर्ल्ड नंबर 1 का फायदा क्या है। तो मेरा मानना है कि भाई आप देश के लिए जब भी खेलने जाओ मेडल जीत के लेके आओ, यही हमारे लिए नंबर 1 नंबर 2 है। आज का जो बाउट्स था आपके लिए, कोई ऐसा चैलेंज सामने रहा या फिर रिलेटिवली इजी बाउट्स रहा इस बार? देखिए, जो भी मैं सोच के गया था, मैं ये सोच के नहीं गया था कि सामने वाला कमजोर है या किसी भी तरह से। मुझे ये था कि भाई मैंने जो ट्रेनिंग करी है, काफी समय से मैं परफॉर्मेंस से जूझ रहा था कि भाई खराब परफॉर्मेंस चल रही है इंजरी के बाद से। तो मेरा था कि भाई मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। जो एग्रेसिव बजरंग आप पहले देखते थे, कोशिश है कि भाई दोबारा से उसी फॉर्म में आना है। तो इंजरी के बाद जो आपका कमबैक हुआ है, आर यू फीलिंग फुल्ली फिट एंड फाइन राइट नाउ? ये एक नया दौर है आप? बिल्कुल बिल्कुल। इंजरी के बाद पहले टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगा कि हम बिल्कुल पूरी तरह से फिट हूँ। और मैं सभी का, जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच हैं, फिजियो हैं और मेरी फैमिली है, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस जो जो पिछला दौर था इंजरी का मेरा, उसमें मेरे साथ खड़े रहे। मीराबाई चानू ने भी अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है, आप गए थे मीरा को सपोर्ट करने के लिए। इंडियन कंटिंजेंट के परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब देशवासी जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड जीतते हैं, मेडल जीतते हैं। और कई खिलाड़ी हैं जो मेडल के नजदीक जाके नहीं जीत पाते, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि भाई आप क्योंकि 135-40 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। कोई बात नहीं, हार और जीत खेल में होती है। तो मेरा मानना है कि उनको भी हमें इतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना हम एक मेडलिस्ट को देते हैं, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में वो भी गोल्ड सिल्वर जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर जगह वो चूक के जाएंगे। तो बिल्कुल मीराबाई ने गोल्ड जीता और भी हमारे गोल्ड आए हैं। और मुझे लगता है कि भाई जो हमारी मेडल टैली में 6-7 नंबर पे चल रहे हैं, तो कोशिश है कि भाई इसको ऊपर लेके आए, क्योंकि अभी रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, फाइनल मुकाबले स्टार्ट हो गए हैं। तो आज 2 गोल्ड रेसलिंग में आ गया, अभी दीपक की बाउट है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर मेडल टैली में हम ऊपर आएंगे। बजरंग, एक आखिरी सवाल, आप जब अंदर आते हैं जो रेसलिंग मैच के लिए, लगता है एक शोमैन आ रहे हैं। ये जब जितनी आज शोर थी, लग रहा था कोई मतलब वाकई में एक शोमैन अंदर आ रहे हैं रेसलिंग करने के लिए। डू यू ऑल्सो हैव दैट माइंडसेट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब भी इतने लोग यहाँ पे, जितना इंडिया में प्यार मिलता है उससे ज्यादा प्यार यहाँ लोग दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग आए हैं कि भाई मामा आपकी कुश्ती देखने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोग यहाँ आके हमें दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। After winning the medal at the Olympic Games in Rio, Sakshi Malik had slipped into oblivion. For a few years now, she had lost her form, and she told herself if she did not get selected for this edition of the games and did not perform, she would call it quits. But then magic happened on the mat. I have with me comeback queen Sakshi Malik. Sakshi, literally comeback किया आपने 2016 के बाद इतनी बड़ी medal. Also, in the match, the way you came back. Tell us a little bit about your comeback. कमबैक के बारे में बात करें तो जैसे देखा अभी आधी में 4-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ओलंपिक्स में मैं कुछ सेकंड्स में भी मैंने मैच चेंज किया है, तो मेरे पास यहाँ तो पूरी 3 मिनट थी। तो रेस्ट में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 4-0 है तो वापस ही कर सकती है, तेरा 100% अटैक लगेगा। और वही हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, और मुझे ये था कि 3 मिनट है तो इसको हरा लेगी। क्या वजह है आप पहले जो दूसरे कंट्री के रेसलर हैं उनको आप अटैक करने देते हैं और बाद में जाके आप उन पे हावी होते हैं? थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा सा मैच को पढ़ने देती हूँ कि कैसे हो रहा है। जैसे इसमें भी मुझे बहुत फास्ट थी, मूव्स बहुत फास्ट थे उसके, तो पॉइंट मेरे 2 होते हुए थोड़ा मिस्टेक भी हुआ। तो मुझे ये था कि थोड़ा देख लेती हूँ लड़की की इतनी फास्ट है, कौन से पैर पे अटैक कर रही है। तो बस यही था कि पहले मैंने देखा कि ठीक है, फिर थोड़ा सेटल हुआ। एकदम से अगर मैं भी ट्राई करती तो शायद और ज्यादा मैं लीड से हारती, लेकिन था फिर 30 सेकंड में मैं आई और कोचेस ने भी समझाया कि अटैक कर, तेरे अटैकिंग रेसलिंग है, अटैक करके ही बात बनेगी। और मैंने अटैक किया जाते ही। और कितने खुश हैं आज आप इस मेडल से? पहला कॉमनवेल्थ मेडल है आपका? नहीं, मेडल तो और भी है, लेकिन गोल्ड पहला है। गोल्ड पहला है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड आ गया। बस यही था कि अब की बार गोल्ड लेके ही आना है, और वही हुआ। 2016 के साक्षी और इस साक्षी में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से तो सेम ही है, आप बता दो। आप बताइए। 2016 दोनों सेम है, बस यही है। In terms of wrestling, इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग इनका ये है कि ये तो 15 से जानते हैं, तो हार्ड टफ टाइम के बाद वापसी आई है, बस इतना ही फर्क है।
वो उस टाइम वो डायरेक्ट मूव अप अप ग्रोइंग था, ये डाउन एंड ग्रोइंग है, बस ये फर्क है इसका। और बहुत टफ टाइम से गुजरी है, और मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक जो प्लेयर नीचे डीप में था उसको ऊपर लेके आया हूँ। ग्रोइंग अप को आप ऊपर और चढ़ा सकते हो, पर जो डीप में चला गया उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो उस स्टेज से आई है जहां से उम्मीद छोड़ दी थी इसने। और इसका लास्ट वर्ड ये थे ट्रायल से पहले, अगर सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बैग पैक करके क्विट करूंगी यहाँ से। तो यही था, मेरे को क्विट नहीं करने देना था इसको, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर अगर जाता है तो हर्ट तो होता ही है। एक आखिरी सवाल, 3-3 गोल्ड आया हुआ है आज रेसलिंग मैच से, कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन रेसलिंग टीम? बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज हमने। एक और गोल्ड आ सकता था हमारा, उसका मुझे है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग ऊपर करने, क्योंकि अभी इंडिया में ही ना इतने टूर्नामेंट हैं, वहाँ ही इतना ज्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है और बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया में इतना कंपटीशन है कि वहाँ ही हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें ही जीतना है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा श्रेय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, ब्रिजभूषण सर को जाता है कि इन्होंने रेसलिंग को इतना ऊपर किया। चलिए, 2016 की साक्षी वापस आई है एंड वी वुड लाइक लव टू सी यू विन अ गोल्ड इन पेरिस ओलंपिक्स। थैंक you very much. Well, talking about comebacks, Deepak Punia had lost his gold medal bout, in fact, in the Tokyo Olympic Games in the last 5 seconds of the match. Yesterday, he made a stunning comeback with a gold medal. We are joined by the third gold medalist of the day from the wrestling match, Deepak Punia. Deepak, हम देख रहे थे आपके फाइट, लेकिन आप पर सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक पाकिस्तानी रेसलर से फाइट कर रहे थे। देखो जी, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया और बिल्कुल बिना प्रेशर के मैं मैच खेला, और काफी जैसे जिस सोच से जिस टारगेट से हम आए थे वो अपना 100% दे के हमने अपना अचीव किया है। साइकोलॉजिकली कभी लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% भी हो ज्यादा देना पड़ेगा? हाँ जी, देखो ये इस चीज का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर जो आज इतने देशवासी आए सपोर्ट करने के लिए, तो मतलब इतने लोगों का जो दुआ प्यार था वो मेरे साथ था, तो मेरे को कोई प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी कि ये देख रहा था कि मैं इतने देशवासी मेरे साथ जुड़े हैं, तो फिर मेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं। और क्राउड के रिस्पांस के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरा स्टेडियम लग रहा था आप ही के सपोर्ट के लिए आए हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे को कि पूरा का पूरा फुल स्टेडियम भरा था, और इंडिया 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 इंडिया, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं। दीपक, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब बिल्कुल सन्नाटा रहता है, वो सन्नाटे से यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम, बड़े स्टेज पे आना, इतने क्राउड के सामने रेसल करना, कभी लगता है कि यू आर नर्वस, रैटल्ड? नहीं जी, देखो अभी मैं रेसलिंग बिल्कुल बचपन में स्टार्ट कर दी थी, तो पहले दंगल भी खेलते थे, तो दंगल में भी मतलब बहुत हजारों आदमी आते हैं और भी काफी कंपटीशन खेलते हैं, तो हर जगह हजारों आदमी देखते हैं, तो ये सब इतना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना ये था कि 100% देना मेरे को, तो मैंने दिया। और ये मेडल आपके लिए सबसे बड़ी मेडल है? हाँ जी, देखो ये गेम्स में मैं पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हूँ, तो इसी में मैंने अपना 100% दिया और गोल्ड मेडल जीता जी। दीपक, एक आखिरी सवाल, टोक्यो से लेके अब तक का जो आपका सफर रहा है, इसमें चैलेंजेस के बारे में हमें जरा बताइए, और वो चैलेंजेस कैसे आप उभर पाए उनसे? देखो जी, आपने टोक्यो ओलंपिक की बात की है अभी, तो 5 अगस्त को ही मैंने अपना जो ओलंपिक गेम्स थे वो मैंने अपने ब्रॉन्ज मेडल चूक दिया था अपना 5 सेकंड में, लास्ट 5-6 सेकंड में। तो उसके बाद मेरे को जो वापस इंडिया गया, जो देश ने मेरे को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका मतलब कुछ कहना नहीं सकता मैं। मतलब इतना हौसला बढ़ाया उन्होंने, इतनी हिम्मत दी कि कोई नहीं बेटे, आगे और अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करता है। तो यही है कि जी, बड़ा सम्मान दिया देश ने, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मोमेंट दीपक, एंड कीप विनिंग अस मेडल्स। थैंक यू। थैंक यू।
Well, currently India are in the 5th position, having won 9 gold medals, 28 medals in total. More medals are expected in the latter half of the day today. So keep watching us for all the updates from the Birmingham Commonwealth Games. Time for a quick break on the show. More on the other side. Stay tuned. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.